قصہ اسی سوال سے آگے نہ بڑھ بہت اچھے، سکا، بہت اچھے۔ اور آخری شعر کے ترک تعلقات کا مت کر کوئی ملال، ترک ہائے ہائے، تعلقات کا مت کر کوئی ملال، ترک کوئی ملال۔ تعلقات کا مت کر کوئی ملال، کوئی کبھی ملال سے آگے نہ بڑھ سکا۔ نہ بہت بڑھ واہ شکریہ، سکتا۔ کیا کہنا ہے، واہ، کیا کہنا ہے۔ شکریہ۔ واہ 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 واہ۔ کوئی کبھی ملال سے آگے نہ بڑھ آگے سکا، بہت شکریہ۔ اور ایک اور تازہ غزل عطا کریں جناب، عطا کریں، جی جی ہم آپ ہی کو سننے کے لیے آئیں گے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا، کہ سائے کے لیے اپنا شجر لے کے چلے ہیں، اپنا شجر لے کے چلے ہیں، سائے کے لیے اپنا شجر لے کے اپنا چلے ہیں، ہم گھر سے ہی سامان سفر لے کے چلے ہیں۔ بھائی واہ، کیا کہنا ہے، بہت کیا شکریہ، کہنا بہت شکریہ، واہ واہ ہے، کیا کہنا ہے، کہنا بہت شکریہ۔ سائے کے لیے اپنا شجر لے کے چلے ہیں، ہے۔ ہم گھر سے ہی سامان سفر لے کے چلے ہیں، ہم لے کے چلے جو بھی جہاں میں تھا ہمارا، بھائی واہ واہ، واہ واہ، ہم لے کے چلے جو بھی جہاں میں تھا ہمارا، ہم اپنے سبھی عیب و ہنر لے کے چلے ہیں۔ عیب و ہنر لے کے کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہم لے کے چلے جو بھی جہاں میں تھا ہمارا، ہم اپنے سبھی عیب و ہنر لے کے چلے ہیں۔ کیا کہنا ہے۔ اور یہ شعر خاص طور پہ دو لوگ ہمیں لائے تھے ایک روز جہاں میں، واہ، دو لوگ ہمیں لائے تھے ایک روز جہاں میں، کیا کہنا ہے، ختم ہوا۔ اور آج ہمیں چار بشر لے کے چلے ہیں۔ کیا واہ، واہ واہ، بہت کیا شکریہ۔ کلمی، واہ واہ کیا واہ۔ کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا دو لوگ ہمیں لائے تھے ایک روز جہاں میں، ہے۔ واہ واہ، اور آج ہمیں چار بشر لے کے چلے ہیں۔ کیا کہنا ہے۔ کل جس سے گرے ٹوٹ کے وہ شاخ جدھر ہے، کل جس سے واہ، گرے کہ وہ شاخ جدھر ہے، چھونکے ہمیں پھر آج ادھر لے کے چلے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا بہت شکریہ۔ چھونکے ہمیں پھر آج ادھر لے کے چلے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ شعر آپ کے لیے کہ آیا ہے عدو پھول لیے اور ادھر ہم، واہ واہ واہ، شکر، کیا کہنا ہے۔ آیا ہے عدو پھول لیے اور ادھر ہم سرحد کی طرف واہ، تیغ و سپر لے کے چلے ہیں۔ کیا بھائی کہنا ہے، واہ، کیا کہنا ہے۔ واہ واہ۔ بہت شکریہ۔ آیا ہے عدو پھول لیے اور ادھر ہم سرحد کی طرف تیغ و سپر لے کے چلے ہیں، کیا کہنا اور دامن میں ہے صحرا سے کمائی ہوئی دولت، واہ، دامن میں ہے صحرا سے کمائی ہوئی دولت، ہم زخم نہیں لال و گوہر لے کے چلے ہیں۔ کیا کہنا ہے۔ واہ شکریہ۔ ہم زخم نہیں لال و گوہر لے کے چلے ہیں، چلے ہیں۔ شکریہ۔ اور آخری شعر اور پھر اجازت آپ سے کہ یہ پھول یہ ریشم کا کفن قبر میں یارو، یہ پھول یہ ریشم کا کفن قبر میں یارو، ہم کو نہیں درکار مگر لے کے چلتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ پھول یہ ریشم کا کفن قبر میں یارو، ہم کو نہیں درکار مگر لے کے چلے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب، کیا کہنا، کیا بڑی کہنا۔ محبت، بہت خوب، بہت اچھا، بہت بہت اچھا۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنا ہے جناب، کیا کہنا ہے، خوبصورت کلام عطا فرمایا آپ نے، واہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب دشمیش گیل تھروز صاحب کیلگری کینیڈا سے، آپ نے خوبصورت کلام عطا فرمایا۔ جی ہمارے ایک اور پریس کلب میں لٹریری کمیٹی کے روح رواں ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کلام سنائیں۔ آپ کو پہلے زحمت کلام اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہنا چاہتے ہیں، اور پھر چونکہ آپ نئے ہیں، آپ نے بھی اپنے بچوں سے یہ طریقہ سیکھا ہوگا کہ کیسے اس میں انٹر ہونا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں اور ہم آپ کا کلام نہ سن سکیں۔ جی کلام عطا فرمائیے۔ طارق کامران جی غزل سے پہلے جی چپ کا پیکر ہو گیا ہے، واہ چپ کا پیکر ہو گیا ہے، وہ سخنور ہو گیا ہے، واہ، کیا کہنا، کیا ہے چپ کا پیکر ہو گیا ہے، وہ سخنور ہو گئے۔ وہ سخنور ہو گیا ہے۔ کیا کہنا، واہ یہ
جانے کتنے اب ہیں باقی، واہ جانے کتنے اب ہیں باقی، ایک چکر ہو گیا ہے، جانے اور اچھا کتنے اب ہیں باقی، ایک چکر ہو چکر گیا ہو گیا ہے، آگے میں جانے اب ہیں باقی چکر ہو گیا ہے۔ شیر ملاحظہ فرمائیں، جون کا وعدہ کیا تھا، جون کا وعدہ کیا تھا اب دسمبر ہو گیا، دسمبر ہو گیا جون کا وعدہ کیا تھا اب دسمبر ہو گیا ہے، کتنا دلکش تیرے دم سے، کتنا دلکش تیرے دم سے، دل کا منظر ہو گیا ہے۔ کیا گیا کیا کہنے ہیں یہ اسد علی رانا صاحب، ہم پوچھیں گے جا کے پریس کلب میں ان سے۔ کیسا منظر ہو گیا ہے، واہ کیا گیا غزل پیش خدمت۔ سکون ہو قرار ہو، سکون ہو قرار ہو خدا کرے، کرے سکون ہو قرار ہو خدا کرے، بے شک چمن میں بہار ہو، خدا کرے، سکون قرار ہو خدا کرے، کیا چمن میں پھر بہار ہو خدا کرے، مہکتی رہگزار ہو خدا کرے، مہکتی رہگزار ہو خدا کرے، پھر اس کا انتظار ہو خدا کرے، انتظار ہو خدا کرے، پھر اس کا انتظار ہو خدا کرے۔ اور شعر دیکھیے، گھروں کی گنتیوں کے بعد ہی صحیح، گھروں کی گنتیوں کے بعد ہی صحیح، غموں کا بھی شمار ہو خدا کرے، گھروں کی گنتیوں کے بعد ہی صحیح، غموں کا بھی شمار ہو خدا کرے۔ اور شعر، جو بات ہو گئی تھی اتفاق سے، جو بات ہو گئی تھی اتفاق سے، وہ بات بار بار ہو خدا کرے، جو بات ہو گئی تھی اتفاق سے، وہ بات بار بار ہو خدا کرے۔ ہمیں تو اعتبار اعتبار ہے، ہمیں تو اعتبار اعتبار ہے، اسے بھی اعتبار ہو خدا کرے، کیا اعتبار ہے، بہت اچھا، اسے بھی اعتبار ہو خدا کرے۔ اور میری اس سے ہمیں تو اعتبار، بہت شکریہ، ہمیں تو اعتبار اعتبار ہے، اسے بھی اعتبار ہو خدا کرے۔ میری غزل بھی فیض سے ہو فیضیاب، میری غزل بھی فیض سے ہو فیضیاب، ادب کا شاہکار ہو خدا کرے، فیضیاب ادب کا شاہکار ہو خدا کرے۔ میری غزل بھی فیض سے ہو فیضیاب، ادب کا شاہکار ہو خدا کرے، نیا سا رنگ دے دیا، نیا سا رنگ دے دیا ہے شعر کو، نیا سا رنگ دے دیا ہے شعر کو، یہ رنگ پائیدار ہو خدا کرے، نیا سا رنگ دے دیا ہے شعر کو، یہ رنگ پائیدار ہو خدا کرے، سکون ہو قرار ہو خدا کرے، چمن میں پھر خدا کرے۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنے ہیں؟ گھروں کی گنتیوں کے بعد ہی صحیح، گھروں کی گنتیوں کے بعد ہی صحیح، غموں کا بھی شمار ہو خدا کرے۔ خوبصورت کلام سے نوازے جناب طارق کامران صاحب، تو اتنی خوبصورت انہوں نے غزل سنائی ہے کہ اب ان سے جا کے ہم نے پریس کلب میں چائے پینی ہے ان کے خرچے پہ۔ ویسے صحافی اپنے خرچے پہ کسی کو پلاتے تو نہیں ہے، صحافی اپنے خرچے پہ کسی کو پلاتے نہیں ہے، لیکن ہم ان سے اپیلیں ہیں۔ بہت شکریہ جناب طارق کامران صاحب، آپ نے بہت خوبصورت کلام عطا فرمایا۔ جی ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو ہیں، یہ خوش مزاج شاعری میں ان کا ایک خاص نام ہے، یہ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے نئے دوست ہیں،
फेस इसके ऊपर ऑनलाइन पे फेसबुक पे इनका अक्सर कलाम पढ़ने को मिलता है और बहुत ही खूबसूरत जुबानों बयान के शायर हैं। जब ये मिज़ाह लिखते हैं तो मजा आ जाता है। जी डॉक्टर खालिद महमूद साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपना कलाम अता फरमाइए। आज की तकरीब के आप चीफ गेस्ट भी हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही तो माइक जरा देखिए। माइक हाँ खुल गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अगर आपने हैंड फ्री लगाया हुआ है तो हैंड फ्री उतार दीजिए। अगर आप हैंड फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मोबाइल में से हैंड फ्री निकाल दें ताकि आपकी आवाज जो है ना वो डायरेक्ट आए। बज़ाहिर तो नहीं लगाया हुआ। वॉल्यूम खोलिए, वॉल्यूम खोलिए। वॉल्यूम तो बंद किया हुआ है। वॉल्यूम खोलिए, आप जरा बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। अगर आपने हैंड फ्री लगाया हुआ है तो उसको आप मोबाइल में से निकाल दीजिए। नहीं लगाया हुआ तो फिर आपने जो है ना वॉल्यूम जो है वो उसको बंद किया होगा, आवाज कम की होगी वॉल्यूम से। वो आवाज खोल के देखें। ये बंद हो गया, वॉल्यूम जो है आपने ऑफ कर दिया है। हाँ अब ठीक है। नहीं, फिर भी नहीं आ रही। चलें आपकी तरफ हम दोबारा आते हैं। ये देखिए आपके यहाँ जो है ना क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करें तो फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे हम रब्ता करते हैं। हमारे साथ मौजूद रहिए, आपका कलाम सुनेंगे। जी मोहतरमा साइमा कमल साहिबा जर्मनी से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा साइमा कमल साहिबा का असल नाम जो है साइमा और तहल्लुस कमल और फिर ये नाम मुकम्मल होकर साइमा कमल हो गया। आबाई शहर आपका कराची है, रहायश आपकी जर्मनी में है। तेरा ये दर्द ही ठहरा है मेरी कुल मीरास, तेरा ये दर्द ही अब मेरे काम आएगा। आपका मजमूआ कलाम आप गिने 2008 में छपा, दूसरा एडिशन, और इससे पहले एक एडिशन छप चुका था, वो 2020 में मनसाए शहूद पर आया। मजमूआ कलाम नई मंजिल बुलाती है, नई मंजिल बुलाती है 2020 में छपा। और हाल ही में आपका मजमूआ कलाम हुस्न खामोशी, जिसके पब्लिश करने का एजाज मुझे हासिल हुआ है लाहौर से, ये 2024 में छपा है। आप मुख्तलिफ अदबी तंजीमों से वाबस्ता हैं। आपके मुख्तलिफ अफसाने उर्दू पॉइंट्स और मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और आप टिकटॉक पर भी हैं जहां पर आपके बहुत खूबसूरत प्रोग्राम अपलोड हो चुके हैं। और आपकी एक तंजीम है सुखन तराज, जिसके ज़ेरे तमाम आपने अदब की खिदमत का बेड़ा उठाया हुआ है। वो इस तरह के सारी दुनिया से आप नए लड़कों को जो शायरी सीखना चाहते हैं उनकी खिदमत करते हुए उनको आप तकनीकी मदद फराहम करती हैं। और पूरी दुनिया में ये नेटवर्क चल रहा है, लाहौर में भी मौजूद हैं लोग, उनसे मेरी मुलाकात हुई और आप अदब की खिदमत कर रही हैं। उसने खामोशी साइमा कमल ने अपनी शायरी में जिंदगी के मिजाज से हम आहंग होकर नज़मिया गुफ्तगू की है। इंसानी रवैया, मिजाज, तफक्कुरात, सोच, मुफादात, ख्वाहिशात और जरूरियात एक ही वजूद में हम आहंग नहीं हो पाती, मगर एहसास उन्हें अपने रवैये के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए अपने काबू में रखता है। और साइमा कमल अपनी नसरी और नज़मिया तहरीरों में खुद को इस बात का पाबंद करती हैं कि कायनात में जिंदा रहना है तो एहसास की हमरही में ही। और साइमा दूर देश में आबाद होने के साथ ही अदब से वाबस्ता हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना कलाम अता फरमाइए, अपना माइक ऑन कीजिए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अब पहले जब मैं नई आई थी तब तो नहीं, लेकिन अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैं जान पहचान रही हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नई किताब की आशात मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने पूरी तकरीब देखी है।
माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। बहुत बहुत आप शुक्रिया। फिर लाहौर तशरीफ लाती तो बेहतर होता। इंशाल्लाह अगले साल मेरा इरादा है, लेकिन अभी तो जो पाकिस्तान की गर्मी के हालात हैं तो वो भी मेरा तो नहीं इजाजत दे दिया। मैं इंशाल्लाह अगले साल मेरा पूरा इरादा है मार्च अप्रैल में। साहब ने बहुत अच्छी तकलीफ की माशाल्लाह। जी जी जरूर, मैं इंशाल्लाह हाजिर होंगी। एक अगर आपकी समातों की नजर करना चाहूंगी जनाब सदर की इजाजत से। इंशाल्लाह ताकीजिए ताकीजिए। खुददार ये हयात का सौदा न कीजिए। क्या कह वाह, रहे हैं? वाह, वाह, क्या वाह बात। शायद वाह। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये हयात का सौदा नहीं। सौदा न कीजिए। वाह, खुददार ये हयात का सौदा न सौदा कीजिए। न कीजिए। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? दुनिया में अपने आप को रुसवा न कीजिए। वाह, वाह बहुत वाह खूब। वाह। वाह वाह। दुनिया में अपने आप को रुसवा न कीजिए। क्या कह रहे हैं? नाजुक है कांच से भी हमारी ये उलझने। वाह, वाह 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 वाह। वाह, नाजुक है कांच से भी हमारी ये हमारी उलझने। क्या कह रहे हैं? टूटे न सर पे आपके उलझा न कीजिए। क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह। टूटे न सर पे आपके उलझा न कीजिए। क्या कह रहे हैं? और शेर है, जरा गौर फरमाइएगा कि पहलू में आपके भी तो होगा जरूर दिल। वाह। पहलू में आपके भी तो होगा जरूर दिल। दिल पे हमारे जुल्म तो इतना न कीजिए। इतना न भाई, कीजिए। वाह। बहुत- वाह वाह दिल पे हमारे जुल्म तो इतना न इतना न कीजिए। कीजिए। क्या कह रहे हैं? वाह वाह। बहुत अच्छे। और जुल्म की इंतहा देखिए कि बरसाते दिल पे तीर मुसलसल है दर्द के। क्या कहना, क्या मिसरा है। बरसाते दिल पे तीर मुसलसल है दर्द के और देते हैं ये हुक्म कि नोहा न कीजिए। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? और देते हैं ये हुक्म कि नोहा न कीजिए। सौगात हुस्न लेके खड़े हम है राह में। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सौगात हुस्न लेके खड़े हम है राह में। ऐसे नजर चुरा के तो गुजरा न कीजिए। गुजरा न कीजिए। क्या कह रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है। वाह। ऐसे नजर चुरा के गुजरा के तो गुजरा तो नहीं। गुजरा न कीजिए। क्या कहना? हम आ गए जो जिद पे तो क्या करेंगे आप। वाह, वाह, क्या मिसरा है, क्या क्या त्योहार मिसरा है, है। क्या त्योहार है। वाह, वाह। वाह। हम आ गए जो जिद पे तो फिर क्या करेंगे क्या करेंगे? आप। हम की ऐसा न कीजिए, अरे ऐसा न कीजिए। गुजरा न कीजिए। वाह। क्या त्योहार है, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और मकतार है कि गिर के जमी पे चूर न हो जाए ए कंवल। वाह। गिर के जमी पे चूर न हो जाए ए कंवल। शीशे के जैसा दिल है उछाला न कीजिए। शीशे के जैसा दिल है क्या कहना? वाह, वाह। उछाला न कीजिए। उछाला न कीजिए। खुददार ये हयात का सौदा न कीजिए। सौदा न कीजिए। दुनिया में अपने आप को रुसवा न रुसवा न कीजिए। कीजिए। क्या कहना? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बहुत बहुत खूबसूरत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा साइमा कमल साहिबा। पहलू में आपके भी तो होगा जरूर दिल। दिल। वाह, वाह। वाह। पहलू में आपके भी तो होगा जरूर दिल। दिल पे हमारे जुल्म तो इतना न कीजिए। खूबसूरत जुबानो बयान की शायरा मोहतरमा साइमा कमल साहिबा ने अपना कलाम अता फरमाया। बाबा जी वकार ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली और गुफ्तगू फोरम ने आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। तो नवाज साहब के साथ मैंने ये डिस्कस की कि प्रोग्राम में शुराए कराम को ज्यादा कलाम सुनाने का मौका दिया जाए। ये कोई तरीका नहीं कि 50 शायर हों और 2 घंटे में हमने वो प्रोग्राम खत्म करना है और प्रोग्राम खत्म करने के लिए हम लठ लेके शायरों के पीछे पड़ जाएं कि आप जो है ना 5 शेर सुनाएं, तहत में इतने सुनाएं और तरन्नुम में इतने सुनाएं। तो इसकी बजाय हमने ये तय किया है कि हम शुराए कराम की एक मखसूस तादाद को दावत कलाम देंगे, उनको दावत देंगे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं और उनसे बेहतर तरीके से और इज्जत के साथ, इज्जत नफ्स उनकी मजरू ना हो, इज्जत के साथ उनका कलाम सुना जाए। तो इसलिए आज से हमने इस काम की इब्तिदा की है कि हम शुराए कराम को
पूरा माशाल्लाह, कलाम सुनाने का मौका देंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत और वो बहुत इत्मीनान के साथ जो है वो अपना कलाम सुनाए। ऐसे नहीं होगा कि आपने 5 शेर सुनाने हैं, आपने 3 शेर सुनाने हैं, वक्त कम है, वक्त थोड़ा ये है, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा जी डॉक्टर खालिद महमूद साहब, आपने हैंड फ्री लगा लिया है, तो हमें बताइए कि आपकी आवाज की क्या पोजीशन है। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी अभी। वही पोजीशन है। जी जी जी, फिर आप कोशिश करते रहिएगा, जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता हम आपको कलाम जरूर सुनेंगे आपका इंशाल्लाह ताला। और अगर खुदा ना खास्ता इस प्रोग्राम में कलाम ना सुन सके तो इंशाल्लाह कलाम के बाद मैं जो है ना, इस प्रोग्राम के बाद आपको कॉल करूंगा, तो मैं आपका कलाम जरूर सुनूंगा। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम आपका कलाम इसी प्रोग्राम में सुन सकें। जी, आप ही हमें आवाज बहुत खुशी हो रही है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर। किसी से मशवरा लेना, घर में कोई है नहीं। मोहतरमा डॉक्टर मुमताज मुनव्वर साहिबा। जी जी हाजिर। जी मोहतरमा डॉक्टर मुमताज मुनव्वर साहिबा, सफा नंबर 17 पे आपका तारुफ है। मैं कुछ तारुफ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये मैंने निकाल लिया सफा 17। वो सफा 17 भी आप नहीं मिल रहा, किधर गया? कोई बात नहीं। आ गया जी। कलमी नाम आपका डॉक्टर मुमताज मुनव्वर, तालीम PhD उर्दू अदब, पुणे यूनिवर्सिटी से आपने तालीम हासिल की। मसरूफियात में आप सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद पुणे, सदर बज़्म ख्वातीन पुणे, सदर मराठी उर्दू महिला साहित्य परिषद। ये इसमें अगर कोई लफ्ज मैं सही अदा ना कर सकूं तो मैं पहले भी आपको दरखास्त करता होता हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए मानूस। मैं आपको एक लतीफा सुनाऊं कि ये जो दशमेश गिल फेरोज साहब हैं, ये गुरमुखी जानते हैं और उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो मैंने इनको अपने अशार बड़ा खुश होकर मैंने गुरमुखी में गुखी लिपि अंतर में इनको मैंने भेजे, तो इन्होंने मेरी गलतियां निकाल के मुझे भेज दी कि भाई इसमें ये गलतियां हैं, इनको दुरुस्त करें। तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए जो मैं ये लफ्ज अदा कर रहा हूँ, इसमें अगर कोई गलती होगी तो आप गलतियां ना निकालिएगा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं। मैंने आइंदा भी ऐसे ही पढ़ने हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी, तो आपके जो है ना, ये महाराष्ट्र मेडिकल एंड रिसर्च एजुकेशन सेंटर पुणे में आपने तालीम हासिल की। गोल्डन जुबली टेक्निकल एजुकेशन सेंटर ज्ञान अदब पुणे, प्रगति फाउंडेशन पुणे। आजादात में आपकी तालीमी और समाजी और सकाफती खिदमात का कई कौमी और बैनुल-अक़वामी तंजीमों की तरफ से एतराफ़ किया जा चुका है। इंटरनेशनल लायंस क्लब में आप शामिल हैं। ऑल इंडिया उर्दू कॉन्फ्रेंस में आप शामिल होती हैं। लाहौर वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपने परफॉर्म किया। कई कौमी और बैनुल-अक़वामी मुशायरों और सेमिनारों और वर्कशॉप में आप शिरकत करती हैं। शेरी मजमूए, अंदाज़े बयान और बहुत से आपके कलाम छप चुके हैं। अहबाब-ए-ज़िक्र, आज बहुत से दोस्तों को, हमने नए दोस्तों को इस प्रोग्राम में दावत दी, तो कुछ दोस्त अपने पहली बार की वजह से हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहे और बार बार मुझे वो ग्रुप पे कॉल कर रहे हैं जी, लेकिन मैं प्रोग्राम की मजबूरी की वजह से उन्हें अटेंड नहीं कर पा रहा। तो इंशाल्लाह ये डॉक्टर मुमताज मुनव्वर साहिबा को मैं दावत कलाम देने के बाद, आज आप मजलिस सदारत में शामिल हैं, हमारी सरपरस्ती कर रही हैं, आप अपना कलाम अता कीजिए। मैं जरा एक दो दोस्तों को अटेंड कर लूं जिन्हें समझ नहीं आ रही कि आप प्रोग्राम में उन्होंने कैसे एंटर होना है। जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर मुमताज मुनव्वर साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई, और तब साहब की इजाजत से एक पहले गजल से पहले खता पेश करती हूँ, लिहाजा करें। गुफ्तगू में है तरन्नुम देखिए, गुफ्तगू में है तरन्नुम देखिए, शोर अंदाज़े तकल्लुम देखिए, शोर अंदाज़े तकल्लुम देखिए, तो है कयामत यार की कातिल अदा, है कयामत यार की कातिल अदा, जान ले लेगा तबस्सुम देखिए। क्या कहना। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में है तरन्नुम देखिए,
शोक अंदाज़े तकल्लुम देखिए, है कयामत यार की कातिल अदा, जान ले लेगा तबस्सुम देखिए। क्या कहना, क्या कहना। तबस्सुम देखिए। बहुत शुक्रिया। और गजल का मतलब सदर साहब क्या करते हैं? वो जमाने मौत से कुछ कम न थे, वो जमाने मौत से कुछ कम न थे, जिंदगी में जब तुम्हारे गम थे, क्या कहना, वाह। जिंदगी में तुम्हारे गम न थे, तुम्हारे गम न थे। बहुत बेखुदी ऐसी भी छाई कभी, बेखुदी छाई कभी, न तुम थे और हम भी थे। आवाज कुछ धीमी हो गई, आवाज कुछ कम हो गई। आवाज डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, बहुत हल्की हो गई आवाज। ये वॉल्यूम तो पूरा है। आ नहीं रही आवाज। असल में वो लय जब पीछे जाती तो एक आधा लफ्ज कट जाता है। आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है आपकी। जी जी। बेखुदी ऐसी भी छाई कभी, न तुम थे और हम भी हम न थे, वाह वाह वाह। थे और भी हम न थे। है लबे दर्दी मगर न लब, है लबे आप ना मुनव्वर साहिबा, डॉक्टर साहिबा माइक नहीं कीजिएगा, अगर तहत में सुना दें तो शायद पहुंच जाए आवाज आपके पिछले नहीं आ रहे हमारे तक, हम महसूस जी कर पा रहे। ताहिर अब्दाल साहब खुश आमदेद। लेकिन अभी आपके बेटे नजर आ रहे हैं ताहिर अब्दाल साहब, आप ना इसका वॉल्यूम बंद कर दीजिए और स्क्रीन के सामने आ जाएं। वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आपकी आवाजें आगे ना आ सकें। वॉल्यूम बंद कर। जी जी डॉक्टर साहिबा। जी जी मैं तहत में पेश जी बेहतर जी। वो जमाने मौत से कुछ कम न थे, वाह वाह वाह। जिंदगी में जब तुम्हारे गम न थे। वाह वाह। क्या कहना है, क्या कहना है। आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, अब आ रही है। वो जमाने मौत से कुछ कम न थे, जिंदगी में जब तुम्हारे गम न थे, वे छाई थी कभी, बेखुदी ऐसी भी छाई थी कभी, तुम न तुम थे और हम भी हम न थे, तुम न थे और हम भी हम न थे। बहुत शुक्रिया। है लबे दरिया मगर है कश न लब, बहुत शुक्रिया। है लबे दरिया मगर है कश न लब, बेबसी के, बहुत शुक्रिया सरवर साहब। है लबे दरिया मगर है कश न लब, बेबसी के यूं कभी आलम न थे, कभी आलम न थे। बहुत शुक्रिया। और वो भी दिन काटे तेरी उम्मीद पर, वो भी दिन काटे तेरी उम्मीद पर, जब सुहाने प्यार के मौसम न थे,
जब बहाने प्यार के मौसम न थे। और ये शेर बताता, जिंदगी में लोग तो मिलते रहे, जिंदगी में लोग तो मिलते रहे, साथ जो सब थे चले, हमदम न थे, साथ जो सब थे चले, हमदम न थे। वॉल्यूम बंद कर दो, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। और ये आपकी आवाज आ रही है, आप कलाम जारी रखिए। जल रहे हैं रोशनी से प्यार की, जल रहे हैं रोशनी से प्यार की, जल रहे हैं रोशनी से प्यार की, ये चरागे दिल कभी मध्यम न थे, कभी मध्यम न थे। वाह, बहुत अच्छे। क्या कहना, जल रहे हैं रोशनी से प्यार की, जल रहे हैं रोशनी से प्यार की, ये चरागे दिल कभी मध्यम न थे, क्या कहना, कभी मध्यम न थे। और ये प्यार की चोटी पे देखा दोस्तों, प्यार की चोटी पे देखा दोस्तों, कामयाबी के वहाँ परचम न थे, शुक्रिया। प्यार की चोटी पे देखा दोस्तों, कामयाबी के वहाँ परचम न थे, कामयाबी के वहाँ परचम न थे, वो जमाने मौत से कुछ कम न थे, जिंदगी में हमारे गम न, जिंदगी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज मुनव्वर साहिबा, इंडिया से आपका तल्लुक और आपने खूबसूरत कलाम अता फरमाया। जी, हमारे एक दोस्त, नए दोस्त हमारे साथ शामिल हुए हैं, जनाब ताहिर अब्दाल ताहिर साहब, लाहौर से बहुत ही खूबसूरत लहजे में शायरी करते हैं और इनके नसर की तो क्या बात है, लाहौर की कोई भी तकरीब इनके मजमून के बगैर मुकम्मल नहीं होती। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किसी भी किताब के ऊपर जब लिखते हैं तो उस किताब में डूब कर उसके ऊपर अपना बयान करते हैं। तो अक्सर इनसे मुलाकात होती है लाहौर के प्रोग्राम्स में। तो मैंने आपसे दरख्वास्त की कि आप ही ऑनलाइन मुशायरों में आइए, आप सिर्फ लाहौर से बाहर निकलें, गो लाहौर। लाहौर के बारे में मैं अहबाब आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं कि यूनेस्को वर्ल्ड आलमी अदारा जो है उसने ये कहा है कि लाहौर जो है ये सारी दुनिया में रोजाना की बुनियाद पर जो अदबी प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं तो वो सबसे ज्यादा लाहौर में होते हैं। परसों की बात है कि यहाँ लाहौर में पांच प्रोग्राम बैक वक्त मुनक्किद हो रहे थे, जिसमें मोहतरमा साइमा कमल साहिबा की किताब की तारीखी तकरीर थी और कॉन्फ्रेंस बाबा बुल्ले शाह थी और एक दोस्त हमारे बाहर से आए हुए थे, उनके एजाज में प्रोग्राम था। एक जगह पे मुशायरा हो रहा था और एक जगह पे महफिल मौसीकी और मुशायरा था। 5 अलग प्रोग्राम थे। तो उसका नतीजा ये निकला कि लाहौर के सारे शायर अदीब वो तकसीम हो गए और जहाँ पे 150-200 लोग होते हैं वहां पे 30-40 से एक प्रोग्राम में मौजूद थे। तो ये लाहौर को ये एजाज हासिल है कि यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा अदबी प्रोग्राम होते हैं। तो जी जनाब ताहिर अब्दाल ताहिर साहब खूबसूरत लहजे के शायर हैं और शायर भी शायर हैं। इनके वालिद ग्रामी जनाब अब्दाल शाह साहब भी शायर थे। जी अपना कलाम अता फरमाइए ताहिर अब्दाल साहब। आपको दावत कलाम इसलिए दी है कि एक तो आपको हम खुश आमदेद कहना चाहते हैं, दूसरा हमें डर है कि कहीं आपका नेट जो है वो ऑफ ना हो जाए, अभी नए नए हैं तो इसलिए। जी जी ताहिर अब्दाल साहब। मेरे लहजे का जादू बोलता है, वाह, मेरे लहजे का जादू बोलता है, मेरे हर लफ्ज में तू बोलता है, मेरे लहजे का जादू बोलता है, मेरे हर लफ्ज में तू बोलता है, तेरी आवाज का धोखा हुआ है, चमन में कोई कू कू बोलता है, तेरी आवाज का धोखा हुआ है, चमन में कोई कू कू बोलता है, मेरे जज्बात रक्सा हो रहे हैं, मेरे जज्बात रक्सा हो रहे हैं, मेरे शेरों में बाहू बोलता है, और असीरे जुल्फ है सारा जमाना,
असूरे जुल्फ है सारा जमाना, बहुत थर चढ़ के जादू बोलता है। क्या कहने, वाह वाह। शेर जी, वो मेरी इल्तिजाएं सुन रहे हैं, वाह, वो मेरी इल्तिजाएं सुन रहे हैं, मेरी पलकों पे आंसू बोलता है। वाह वाह। वो मेरी इल्तिजाएं सुन रहे हैं, मेरी पलकों पे आंसू बोलता है। मैं तेरा भेद पाना चाहता हूँ, मैं तेरा भेद पाना चाहता हूँ, मेरा वजदान हू बोलता है। वाह 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 वाह। मैं ऐसे मंजिलों को छूना चाहूँ, मैं ऐसे मंजिलों को छूना चाहूँ कि जैसे कोई आहू बोलता है। ऐसे मंजिलों को छूना चाहूँ कि जैसे कोई आहू बोलता है। बहुत रोशन हुई है मेरी आंखें, वाह, बहुत रोशन हुई है मेरी आंखें, सितारा वार जुगनू बोलता है। वाह वाह। बहुत रोशन हुई है मेरी आंखें, सितारा वार जुगनू बोलता है। मैं अपनी खामोशी में गुम हूँ ताहिर, मैं अपनी खामोशी में गुम हूँ ताहिर, मेरे अंदर का साधु बोलता है। माशाल्लाह, खूबसूरत कलाम अता फरमाया आपने। तू बोलता है, मेरे जज्बात रक्सा हो रहे हैं, मेरे जज्बात रक्सा हो रहे हैं, मेरे शहरों में बहू बोलता है। आपने खूबसूरत कलाम अता फरमाया जी। जनाब डॉक्टर खालिद महमूद साहब, आपकी क्या पोजीशन है आवाज की? यार कहते मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा? आपकी आवाज का, आपकी एक लम्हा मयसर नहीं, खामोशी मुस्तकिल शोर है। एक लम्हा मयसर नहीं, खामोशी मुस्तकिल शोर है, खामोशी से सदा है निकाली गई मुस्तकिल शोर है। तो आप खामोशी के साथ हमारी बातें सुने। हालांकि फैसलाबादी जो है ना, वो तो ना तो कोई मौका हाथ से जाने देते हैं और ना ही कोई फिक्रा जो है ना उसको अपने हाथ से जाने देते हैं। चलें, कोई बात नहीं, हम आपका इंतजार करेंगे आखिरी लम्हे तक कि अल्लाह ताला आपको जुबान अता फरमाए। आवाज आई है आपने की, आवाज आई है, आवाज आई है। बुनियत का लम्हा था जी। कलाम आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज, आ रही है। आपको खड़क की आवाज आ रही है, तो आप भूल हो गई है। अच्छा, नहीं साफ आ रही है, तो फिर मैं जी कलाम अता फरमाइए। कलाम अता फरमाइए। एक कथा और उसके बाद गजल के कुछ अशार सर। बता कीजिए। शायर जो एक कल मेरा मेहमान हो गया, वाह। शायर जो एक कल मेरा मेहमान हो गया, शब भर वो मेरे जब्त से यूं खेलता रहा। शायर जो एक कल मेरा मेहमान हो गया, शब भर वो मेरे जब्त से यूं खेलता रहा। इरशाद मेरे मुंह से जो सहमन निकल गया, जालिम तमाम रात सुखन पेलता रहा। इरशाद मेरे मुंह से जो सहमन निकल गया, जालिम तमाम रात सुखन पेलता रहा। और गजल के कुछ अशार के, नर में कुछ मादा की तासीर भी हो सकती है, नर में कुछ मादा की तासीर भी हो सकती है, हलवा लगता है मगर खीर भी हो सकती है। क्या कहने, तू जिसे, बहुत शुक्रिया, तू जिसे दूर से ताड़े ही चला जाता है, तू जिसे दूर से ताड़े ही चला जाता है, कम नजर वो तेरी हमशीर भी हो सकती है। क्या कहना। और साइंसी दौर है, साइंसी दौर है, इस दौर में सब मुमकिन है। साइंसी दौर है, इस दौर में सब मुमकिन है, आज वो रांझा है कल हीर भी हो सकती है। और तू समझता है,
तू समझता है कि उठते हैं मोहब्बत के मरोड़, तू समझता है कि उठते हैं मोहब्बत के मरोड़, तेरे मेरे की ये तकदीर भी हो सकती है। अख्द ने कर दिया महदूद फकत एक तलक, अख्द ने कर दिया महदूद फकत एक तलक, वरना उल्फत तो हमागीर भी हो सकती है। और दाद मिलती है उसे नसरी गजल पर जितनी, दाद मिलती है उसे नसरी गजल पर जितनी, बल्कि वो मीर तकी मीर भी हो सकती है। बल्ले बल्ले बल्ले। एक और गजल के चंद अशआर कि जो पहले थी वो बात अब तुझ खटारे में नहीं है, जो पहले थी वो बात अब तुझ खटारे में नहीं है, जो पहले थी वो बात अब तुझ खटारे में नहीं है, खजूर ऐसी तरावट तो छुहारे में नहीं है। वो एक बीवी से 10 बच्चों के पहुंचा है हदफ तक, वो एक बीवी से 10 बच्चों के पहुंचा है हदफ तक, किसी सूरत भी इश्क उसका खसारे में नहीं है। वो एक बीवी से 10 बच्चों के पहुंचा है हदफ तक, किसी सूरत भी इश्क का खसारे में नहीं है। चमक जो वसल के वादों पे आंखों में है उठती, चमक जो वसल के वादे पे आंखों में है उठती, किसी कुतबी किसी दुमदार तारे में नहीं है। मगरिब के मुकल्लद जुमला महबूबान मशरिक, है मगरिब के मुकल्लद जुमला महबूबान मशरिक, कोई भी आज लहंगे में गरारे में नहीं है। और मोहब्बत एक से जायज और नाजायज है दो से, मोहब्बत एक से जायज और नाजायज है दो से, हिसाब ऐसा वफा के गोशवारे में नहीं है। और आखिरी शेर के फजाए जौजगी में भी करे परवाज उल्फत, फजाए जौजगी में भी करे परवाज उल्फत, सकत इतनी तो इस गैसी गुब्बारे में नहीं है। वाह वाह, क्या कहने हैं। जनाब डॉक्टर खालिद महमूद साहब, आपने माशाल्लाह देर आए दुरुस्त आए खूबसूरत, आपकी ये पहचान है, आपने बहुत खूबसूरत लहजे में हमें इशारा फरमाए। तो आपकी खिदमत में कि लाइफ जैकेट पहन के सोनी दरिया में जब उतरी, लाइफ जैकेट पहन के सोनी दरिया में जब उतरी, महिवाल भी बारबेक्यू से गधा कबाब हिलाया। लाइफ जैकेट पहन के सोनी दरिया में जब उतरी, महिवाल भी बारबेक्यू से गधा कबाब हिलाया। हीरो और रांझा मिर्जा साहिबा वीडियो चैट पे आए। हीरो और रांझा मिर्जा साहिबा वीडियो चैट पे आए। मजनू ने लैला से पैसे लेकर डिनर कराया। आपसे इतनी दरखास्त है कि आइंदा भी हमारे प्रोग्राम्स में कह के खेलते रहिएगा, लेकिन आपने जैसे आज अपनी आवाज को ऑन एयर किया है, ये सिस्टम आपने याद रखना, आइंदा नहीं आपने भूलना। ठीक है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जनाब, हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे एक नए दोस्त आज इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जी जनाब नवाज मोहम्मद गुलियाना साहब किसी तारफ के मुताज नहीं, आप ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली के सदर हैं। आपका नाम मोहम्मद नवाज है, गुजरात पाकिस्तान में आप इस दुनिया में तशरीफ लाए और अपने भाई गांव गुलियाना के हवाले से अपने नाम के साथ मोहम्मद नवाज गुलियाना लिखते हैं। अदबी नाम आपका नवाज गुलियाना है। FA गवर्नमेंट जिम्मेदारा कॉलेज गुजरात से किया। 19 बरस की उम्र में वालिद साहब के पास स्विट्जरलैंड आ गए, वहां इकोनॉमिक्स में 4 साल डिप्लोमा किया। 1993 में प्राइवेट सर्विस से अपनी जिंदगी का आगाज किया। फिर इटली में आबाद होने के बाद खान एक्सप्रेस के नाम से अपनी कोरियर फर्म बनाई। फर्म को चलाने के लिए ऑफिस बनाए और उसके लिए स्टाफ रखा।
2022 میں بیٹے نے ٹریول ایجنسی بنائی تو اس میں بطور چیف ایگزیکٹو تاحال کام کر رہے ہیں۔ 2003 میں اپنی تنظیم حلقہ ادب و ثقافت اٹلی کا سرپرست اعلیٰ آپ کو بنایا گیا۔ 2019 میں اپنی تنظیم گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کی بنیاد رکھی۔ زمینی پروگرامز کے ساتھ آن لائن ادبی پروگرامز کی تعداد اب تک 1000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اہل ادب کے ساتھ رہ کر خود بھی شاعری کرنے لگے اور ان کا مجموعہ کلام راستے میں بکھرے پھول چھپ چکا ہے، جبکہ لمحے خواب ہوئے کے نام سے یادداشتیں مرتب کر رہے ہیں۔ گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی نے لسانی زبانوں کے مشاعروں کا آغاز کیا تو پنجابی شاعری بھی کرنے لگے ہیں۔ دنیا داری کی بھی آخر حد ہوتی ہے، ہر کام میں کشت و شد و مد ہوتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے جناب نواز گلیانہ صاحب۔ جی بہت شکریہ محترم انیس احمد صاحب، آپ نے بڑا اچھا تعارف کرایا اور بڑا مفصل کرایا، بہت مہربانی آپ کی۔ ایک غزل پیش کرنا چاہوں گا صاحب صدر کی اجازت سے۔ جی عطا کیجیے۔ ایک سمندر ایک کوزے میں آ جائے، ایک سمندر ایک کوزے میں آ جائے، مجھ کو کوئی ایسا راز بتا جائے، مجھ کو کوئی ایسا راز بتا جائے، میں نے اپنے سائے سے کیوں لڑنا ہے، میں نے اپنے سائے سے کیوں لڑنا ہے، اپنے سائے سے کیوں لڑنا ہے، کوئی ہم دونوں کی صلح کرا جائے۔ کیا کہنے گلیانہ بھائی، کمال شعر ہے۔ فرما رہے ہیں کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ اچھا کام کروا سکتے۔ اب اس نے کیوں میرے ساتھ نہیں رہنا، واہ اب اس نے کیوں میرے ساتھ نہیں رہنا، جاتے جاتے اتنی بات تو بتا جائے، واہ جاتے جاتے اتنی بات بتا جائے، کیا کہنے کیا کہنے۔ بادل گرجے ہیں کتنی آواز کے ساتھ، بادل گرجے ہیں کتنی آواز کے ساتھ، آواز کے ساتھ، بجلی چمکے تو دل کو دہلا جائے، واہ بجلی چمکے تو کیا کہنا۔ میرا کیا نقصان کریں گے لوگ، میرا کیا نقصان کریں گے میرا لوگ، کیا نقصان کریں گے لوگ، جو بھی بولے اپنا آپ دکھا جائے، واہ جو بھی بولے اپنا آپ دکھا جائے۔ نقصان کریں گے لوگ، بہت شکریہ سر، آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ سر، نیکسٹ۔ انیس بھائی اپنا مائک کھولیے۔ ہاں مائک۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب نواز گلیانہ صاحب، آپ نے خوبصورت کلام عطا فرمایا۔ احباب عزیز وقار، گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی اور گفتگو فورم پاکستان کے زیر اہتمام آن لائن عالمی مشاعرے میں جو احباب بھی اس وقت سکرین پر نظر آ رہے ہیں، سب ہمارے معزز مہمان ہیں، سب کو انشاءاللہ تعالی باری باری جو ہے وہ پڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فرخ ضیاء مشتاق صاحب، جو پہلے لمحے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام عطا فرمائیے، مائک کھولیے، مائک کھولیے۔ فرخ ضیاء مشتاق صاحب اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے اور زبان و بیان کے شاعر ہیں، بہت ہی خوبصورت لہجے میں، اور مجھے سکرین پہ ایک کونے میں فرخ ضیاء بائیں کونے میں نظر آ رہے ہیں اور دائیں کونے میں سرور سمدانی صاحب نظر آ رہے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں یہ شاعر تو ہیں ہی، ساتھ میں کزن بھی ہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بہت نوازش جناب انیس بھائی۔ جناب صدر کی اجازت سے ایک ہلکی پھلکی سی غزل عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی مجھے پھندا لگا اور انیس صاحب نے بلا لیا، خیر گزارا کروں گا۔
کوئی بات نہیں، آپ جو ہے نا تھوڑا آرام فرما لیجئے، میں آپ کے کزن کو پہلے دعوت کلام دے دیتا ہوں۔ کوئی بات یہی ہے، مجھے اچھا لگ رہا۔ جی، سرور سمدانی صاحب جو ہے وہ ملتان میں مقیم ہیں۔ آپ ہمہ جہت ادبی شخصیت ہیں اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام عطا فرمائیں جناب سرور سمدانی صاحب۔ میں تمام نئے آنے والے احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ نے جو گفتگو فرمائی وہ بہت قیمتی گفتگو تھی گلوبل رائٹر سے متعلق، جو آپ نے تمہید باندھی، اور نواز بھائی کا جو کرایا تعارف۔ تو میں اپنی غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ کس بات پہ ہے اتنا بھروسہ دل سادہ، کس بات پہ ہے اتنا بھروسہ دل سادہ، کس بات پہ ہے پیار کا دعویٰ دل سادہ، اور ہوتا ہے وفا کا یہ تقاضا دل سادہ، ہوتا ہے وفا کا یہ تقاضا دل سادہ، کیا یاد دلائیں تیرا وعدہ دل سادہ، ہوتا ہے وفا کا یہ تقاضا دل سادہ، کیا یاد دلائیں تیرا وعدہ دل سادہ، ہر نقش مٹا دیتا میرے وہم و گما کو، یہ بھی تو ادا کرتا فریضہ دل سادہ، ہے کس کی عنایات کا حاصل میں کہوں کیا، ہے کس کے تعارف کا حوالہ دل سادہ۔ اور انیس بھائی شعر دیکھیے کہ نزدیک سے گزرا ہے کوئی چاہنے والا، نزدیک سے گزرا ہے کوئی چاہنے والا، بے ساختہ جو آج پکارا دل سادہ، جو آج پکارا دل سادہ، اور شے دے کے میں کر دیتا تجھے مات کبھی کی، بہت اعلیٰ شعر ہے، واہ واہ۔ شے دے کے میں کر دیتا تجھے مات کبھی کی، میں نے تو ابھی مارا ہے پیادہ دل سادہ، کیا کہنے شے دے کے میں کر دیتا تجھے مات کبھی کی، میں نے تو ابھی مارا ہے پیادہ دل سادہ، کیسا یہ جنو ہے کہ جو ٹکنے نہیں دیتا، منزل کا پتہ پوچھنے نکلا دل سادہ، کس آس پہ یہ روگ محبت کا لگایا، فرصت کبھی تو نے یہ سوچا دل سادہ۔ بہت شکریہ۔ پوشیدہ کہاں سامنے اب آ ہی گیا ہے، ہر لب پہ تیرے نام کا چرچا دل سادہ، اور یہ خوف سا رہتا ہے مسلسل ہی مجھے تو، یہ خوف سا رہتا ہے مسلسل ہی مجھے تو، کر لینا کہیں مجھ سے کنارہ دل سادہ، کر لینا کہیں مجھ سے کنارہ دل سادہ۔ حالانکہ ایک دن کرنا ہی ہے، اور سرور یہی دیکھا ہے غمی ہو یا خوشی ہو، سرور یہی دیکھا ہے غمی ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں کرتا ہے گزارا دل سادہ، کس بات پہ ہے اتنا بھروسہ دل سادہ، کس بات پہ ہے پیار کا دعویٰ دل سادہ۔ سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، واہ واہ واہ۔ نزدیک سے گزرا ہے کوئی چاہنے والا، نزدیک سے گزرا ہے کوئی چاہنے والا، بے ساختہ جو آج پکارا دل سادہ۔ جناب سرور سمدانی ایڈوکیٹ صاحب نے خوبصورت کلام عطا فرمایا۔ احباب عزیز، گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی اور گفتگو فورم پاکستان کے زیر تمام عالمی مشاعرے میں مجھے آج بہت خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ ہمارے بہت نئے دوست اس دنیا میں تشریف لائے، اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، نئی دنیا میں تشریف لائے ہیں، خالد محمود صاحب کا جو ہے رنگ مجھ پہ چڑھ گیا ہے، ان کا رنگ مجھ پہ چڑھ گیا ہے تو نئی دنیا، لیکن یہ آج آپ کے لیے بھی نئی دنیا ہے کہ آپ لوگ بالکل نئے پروگرام میں تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی۔ اور اب میں آپ کو اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک دو دوستوں کو لنک نہیں بھیج سکا،
اور उन दोस्तों का प्रोग्राम के दौरान मैसेज आया कि हमें लिंक नहीं मिला, तो उसमें उन दोस्तों में जनाब शमून आफ्ताब नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शमून आफ्ताब नकवी साहब रेडियो और टेलीविजन के नात खान हैं, बहुत खूबसूरत लहजे में सना खानी फरमाते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तो बस हर विजदान जो है वो तारी हो जाता है, रूह तक। जनाब शमून आफ्ताब नकवी साहब ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली और गुफ्तगू फोरम पाकिस्तान के ज़ेर तमाम ऑनलाइन आलमी मुशायरे में आपने हमें नात अता करनी थी इब्तिदा में, लेकिन मेरी कोताही की वजह से आप तक लिंक नहीं पहुंच सका, आप देर से तशरीफ लाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे आप माफ कर दीजिएगा और अपना नात अता फरमाइए। अगर आपको साइमा कमी साहिबा की नात याद हो तो वो अता कर दे, वरना जो आपका जी चाहे वो अता कर। माइक खोलिए, माइक खोलिए, आप स्क्रीन को टच कीजिए मोबाइल की, तो जहाँ पे ये माइक का निशान नजर आ रहा है ना, उसको टच करेंगे तो माइक खुल जाएगा आपका। स्क्रीन को टच कीजिए, स्क्रीन को टच करेंगे तो ये जो सुरख निशान नजर आ रहा है ना कि माइक के ऊपर ये लकीर खींची हुई है, आप इसको टच करें, अपनी तस्वीर को पहले टच करें, स्क्रीन पे किसी जगह भी टच करेंगे, किसी जगह भी स्क्रीन पे टच करें, उंगली के साथ आप स्क्रीन टच कीजिए मोबाइल की। ये आप इंटर नहीं हो पा रहे, पहली बार है, कोई बात नहीं, तो ये आप ये टच कीजिए जैसे हाथ आपने आगे किया था ना, इसे ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक माइक बना हुआ होगा, स्क्रीन लेफ्ट के लेफ्ट के ऊपर ये सुर्ख रंग का माइक बना हुआ है, इस माइक को टच कीजिए तो आपका माइक ओपन हो जाएगा। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप माइक खोलिए तो हम अगले दोस्त की तरफ चलते हैं, तो उनके बाद फिर आपसे नातिया कलाम सुनते हैं। जी, फरख ज़िया मुश्ताक साहब इस्लामाबाद से तल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम अता फरमाइए। बहुत नवाजिश अनीस भाई। जनाब सदर हल्की फुल्की सी गजल पेश खिदमत है। यादों की सुलगती ताज़ीरें कुछ तहरीरें, यादों की सुलगती ताज़ीरें कुछ तस्वीरें, माजी पे रकम ये तहरीरें कुछ तस्वीरें, बीनाई ये जख्मी कर देंगी, हाँ कर देंगी, बीनाई ये जख्मी कर देंगी, हाँ कर देंगी, आंखों पे लटकती शमशीरें कुछ तस्वीरें, शमशीरें कुछ तस्वीरें। अर्ज करता हूँ, अश्कों में ही बहती रहती हैं, क्या कहती हैं, क्या कहती है? अश्कों में ही बहती रहती है, क्या कहती हैं, पानी से बने कुछ तस्वीरें कुछ तस्वीरें, अर्ज करता हूँ जी, कुछ डरते डरते लफ्जों में सहमी सहमी, कुछ डरते डरते लफ्जों में सहमी सहमी, किस्मत की मुबहम तफसीरें कुछ तस्वीरें, किस्मत की मुबहम तफसीरें कुछ तस्वीरें, मेरा तो यही है सरमाया कुल सरमाया, वाह, मेरा तो यही है सरमाया कुल सरमाया,
وہ جڑی سی وفا کی جاگیریں کچھ جاگیریں تصویر واہ کیا وہ جڑی سی وفا کی جاگیریں جاگیریں کچھ تصویر واہ واہ مختار کرتا ہوں پورنم سی فضا غم غم سی فضا واہ 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 پورنم کیا سی کہتے ہیں؟ فضا پورنم سی فضا غم غم سی کیا فضا کہتے ہیں؟ پر رخ واہ پورنم سی فضا غم غم سی فضا ان میں پر رخ لگتی ہے خوشی کی تن تن تنویریں کچھ تصویر یادوں کی سلگتی تعبیریں کچھ تصویر بھائی واہ واہ ماضی پہ رقم یہ واہ تحریر واہ کچھ تصویر بہت نوازش واہ جی بہت شکریہ جناب فروخ ضیاء صاحب جی شمون صاحب جو ہیں وہ میرا خیال آف لائن ہو گیا شمون صاحب اگر آپ آواز سن رہے ہیں شمون آفتاب نقوی آپ چلیں اختر چیمہ صاحب پروفیسر اختر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیالکوٹ سے اور آج کچھ یہ نئے حلیے میں نظر آ رہے ہیں تھوڑی سی پتیلی چہرے پہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ ہمیشہ ہی خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن آج کے کچھ زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ بالکل میں نئے چہرے کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنا کلام بتاؤ مائک کھولنا جی مائک کھولیے چیمہ صاحب مائک کھولیے جی بہت شکریہ زندہ رہیں سلامت رہیں جی شمون آفتاب نقوی صاحب آپ ایسا کیجئے شمون صاحب ان کے بعد آپ کی باری ہے تو آپ سائمہ کمل صاحبہ کی جو نعت آپ نے پرسوں پروگرام میں پڑھی تھی وہ نکال لیجئے ان کے بعد پھر آپ کی باری ہے جی اختر چیمہ صاحب جی جی بہت شکریہ جی ایک غزل کے چند اشعار جی کہ پرندے اڑ گئے ہیں بے ثمر اشجار ہیں سارے واہ واہ پرندے اڑ گئے ہیں بے ثمر اشجار ہیں سارے کسی طوفان وحشت ناک کے آثار ہیں سارے پرندے اڑ گئے ہیں بے ثمر اشجار ہیں سارے کسی طوفان وحشت ناک کے آثار ہیں سارے کیا کہنا عدو کی لشکر جرار کو اب کون روکے گا عدو کے لشکر جرار کو اب کون روکے گا کیا کہنے اختر بھائی بہت شکریہ جی عدو کے لشکر جرار کو اب کون روکے گا میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں بیکار ہیں سارے واہ 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 بہت اچھا شعر واہ واہ بہت شکریہ میں کس کے آسرے پر اب بھلا میدان میں اتروں کس کے آسرے پر اب بھلا میدان میں اتروں رقیبوں کی صفوں میں شامل اپنے یار ہیں سارے میں کس کے آسرے پر اب بھلا میدان میں اتروں رقیبوں کی صفوں میں شامل اپنے یار ہیں سارے کیا کہنا بہت شکریہ جی کوئی پرسان حال اپنی رعایا کا نہیں بنتا کوئی پرسان حال اپنی رعایا کا نہیں بنتا کیا کہنا ملک میں مسند نشین غدار ہیں سارے کیا کہنا حسب حال ہے حسب حال بہت کوئی پرسان حال اپنی رعایا کا نہیں بنتا کیا کہنا ہمارے ملک میں مسند نشین غدار ہیں سارے کیا کہنا بہت شکریہ جی بہت بھلا طاغوت کے آگے یہ کیسے بول سکتے ہیں بھلا طاغوت کے آگے یہ کیسے بول سکتے ہیں ہمارے حکمراں ان کے وظیفہ خار ہیں سارے کیا کہنا بھلا طاغوت کے آگے بہت شکریہ جی
वाह तागूत के आगे ये कैसे बोल सकते हैं। क्या कहना। जी, बहुत शुक्रिया। मारे हुक्मरां उनके वजीफा खार हैं। बहुत शुक्रिया जी। और सितमगर तू गुरेजा है नकाबे रुख उठाने से। नकाबे रुख उठाने से, वाह। सितमगर तू गुरेजा है नकाबे रुख उठाने से। मेरी बस्ती में तेरे इश्क के बीमार हैं सारे। वाह वाह क्या कहना। सितमगर तू गुरेजा है नकाबे रुख उठाने से। मेरी बस्ती में तेरे इश्क के बीमार हैं सारे। क्या कहना। जी बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए कि भला शहरे मुनाफिक में हमारी कौन सुनता है। क्या कौन कहना। सुनता है। भला शहरे मुनाफिक में हमारी कौन सुनता है। अमीरे शहर के ही हाशिया बरदार हैं सारे। हाशिया बरदार है सारे, क्या कहने। हाशिया बरदार है, जवाब नहीं है। जी वाह बहुत शुक्रिया। क्या कहना। शहरे मुनाफिक में हमारी कौन सुनता है। मेरे शहर के ही हाशिया बरदार हैं सारे। क्या कहना। क्या कहना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर मुलाहजा फरमाएं कि नुमाया खुद को करने का सलीका खूब रखते हैं। क्या कहना। नुमाया खुद को करने का सलीका खूब रखते हैं। हमारे शहर के अहले कलम फनकार हैं सारे। क्या कहना। वाह वाह वाह। या खुद को करने का सलीका खूब रखते हैं। क्या कहना। हमारे शहर के अहले कलम फनकार हैं सारे। क्या कहना। परिंदे उड़ गए हैं बेसमर अशजार हैं सारे। क्या किसी कहना। तूफान में खतरनाक के आसार हैं सारे। क्या कहना। क्या कहना। बहुत खूब जनाब अख्तर चीमा साहब, आपने खूबसूरत कलाम से नवाजा। दशमेश गिल साहब इस वक्त कनाडा में जो है वर्किंग टाइम है, उनका मैसेज आया था, मेरा ख्याल है वो ऑफलाइन हो गए हैं। जी ऑफलाइन हो गए हैं जी। शमोन आफ्ताब नकवी साहब अपना माइक खोलिए और अपना माइक जो है ना ये ऑन कीजिए। आप आवाज आ रही है आपको। जी आवाज आ रही है जनाब। जी जो अगर हमें वो नात अता फरमाए साइमा कमल साहिबा की जो परसों प्रोग्राम में आपने लाहौर में पढ़ी थी, तो ममनून होगा। चले अच्छा वो कागज उधर चले और सुना दें। लेकर मैं आया हूँ आपका। इस जी, वक्त नात मेरे सामने नहीं है। कागज अगर दूर है तो आप कागज उठा लाएं, तो हमें एक और दोस्त को दावत देते हैं, उसके बाद फिर आप पढ़ दीजिए। हाँ जी 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 बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हमारे मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर खालिद महमूद हमारे नए दोस्त हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में। वैसे तो हमारे दोस्त हैं पुराने, लेकिन ऑनलाइन नए दोस्त हैं आज। तो हमने ये जो हमारे नए दोस्त आए हैं उनसे हम 2 बार कलाम सुनेंगे। जी दशमेश गिल साहब, दशमेश गिल फैरोज साहब कनाडा में इस वक्त वर्किंग टाइम है, तो इन्होंने कुछ इनकी मसरूफियत है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बतौर मेहमान खुसूसी हमें कलाम अता फरमा दीजिए। हाँ, 1 मिनट। आपको आवाज सुन रही है मेरी इस वक्त? अरे जी जी जी। मैं अगर आप अगले एक मेहमान को बुला ले, मैं दरअसल तैयार नहीं था इसके लिए, तो मैं आता हूँ। ओके ओके, आपके मैसेज की वजह से मैंने आपको ज़हमत कलाम दी। जी डॉक्टर खालिद महमूद साहब। जी बहुत शुक्रिया अनीस भाई। गजल के चंद अशआर में पेश करूंगा। जी शकीला मुनज़्ज़ा हिना खूबसूरत, शकीला मुनज़्ज़ा हिना खूबसूरत, तेरी हर सहेली महा खूबसूरत। शकीला मुनज़्ज़ा हिना खूबसूरत, तेरी हर सहेली महा खूबसूरत। क्या नजर उसकी दिल पर नहीं जेब पर है,
नजर उसकी दिल पर नहीं जेब पर है, मोहब्बत से है रोकड़ा खूबसूरत। क्या कहना न महबूबा मनकूहा जब तक बने तो, न महबूबा मनकूहा जब तक बने तो लगता हर एक चौंचला खूबसूरत। क्या कहना महबूबा मनकूहा जब तक बने तो है लगता हर एक चौंचला खूबसूरत। क्या कहना जो आ जाए हबशन पे भी दिल तो वो है, जो आ जाए हबशन पे भी दिल तो वो है, चलो पतराओ अप्सरा खूबसूरत। क्या कहना जो आ जाए हबशन पे भी दिल तो वो है, कलो पतराओ अप्सरा खूबसूरत। क्या कहना और तेरी सास की है नजर मुझ पे तब से, तेरी सास की है नजर मुझ पे तब से, बस एक बार था कह दिया खूबसूरत। क्या कहना तेरी सास की है नजर मुझ पे तब से, बस एक बार था कह दिया खूबसूरत। और फटी महवशों की हैं घुटनों से जीने, फटी महवशों की हैं घुटनों से जीने, गजब की चली ये बबा खूबसूरत। क्या कहना बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर खालिद महबूब साहब जी, शमूना खान साहब जी, दशमेश गिल फरोज कैलगरी कनाडा। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी तैयारी मुकम्मल बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक वजाहत कर दूं कि मैं दरअसल वैंकूवर से हूँ, मैं कनाडा से ही। बहरहाल अच्छा, सॉरी और एक मैं ये में आपकी मुलाकात होती है ना कैलगरी के दोस्तों के साथ, तो इसलिए मेरे जी जाहिर है। एक मैं अर्ज ये भी कर दूं कि अगर क्योंकि उर्दू में मैंने तालीम कभी हासिल नहीं की, इसलिए अगर कुछ तलफ़ुज़ में कुछ आगे पीछे हो जाए तो माजरत चाहता हूँ। बहुत अच्छा है। बहरहाल एक शुक्रिया आपका दोबारा दावत के लिए। सिर्फ 6 शेर आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रहा हूँ। अर्ज किया है कि तीरगी कल शाम नीला आसमां तक खा गई, तीरगी कल शाम नीला आसमां तक खा गई, आग इतनी बढ़ गई अपना धुआं तक खा गई। तीरगी कल शाम नीला आसमां तक खा गई, आग इतनी बढ़ गई अपना धुआं तक खा गई। क्या कहना मतलब आसानी इसमें कि खुद ब खुद अपने सभी नामो निशां तक खा गई। क्या कहना खुद ब खुद अपने सभी नामो निशां तक खा गई। एक नदी अपने किनारों को यहाँ तक खा गई। क्या कहना वाह, शुक्रिया शुक्रिया। खुद ब खुद अपने सभी नामो निशां तक खा गई। एक नदी अपने किनारों को यहाँ तक खा गई, और इस कदर भूखी थी आंधी कल हमारे शहर में, इस कदर भूखी थी आंधी कल हमारे शहर में, वो मकीनों को तो क्या उनके मकान तक खा गई। मकान तक खा गई। क्या कहना शुक्रिया शुक्रिया। वो मकीनों को तो क्या उनके मकान तक खा गई। क्या और कोई मौसम भी नहीं छोड़ा हवाए सर्द ने, कोई मौसम भी नहीं छोड़ा हवाए सर्द ने, मौसमे गुल ही नहीं जालिम खिजा तक खा गई। शुक्रिया शुक्रिया। और धूप ने यकदम मेरी आंखों को वीरां कर दिया, धूप ने यकदम मेरी आंखों को वीरां कर दिया, सहर मेरे ख्वाब के नामो निशां तक खा गई। और आखिरी शेर इसका है कि सिर्फ इतना ही नहीं अल्फाज भूले हो मुझे, सिर्फ इतना ही नहीं अल्फाज भूले हो मुझे, मुद्दतों की खामोशी मेरी जुबां तक खा गई। क्या कहना सिर्फ इतना ही नहीं अल्फाज भूले हो मुझे, मुद्दतों की खामोशी मेरी जुबां तक खा गई। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया दशमेश गिल फरोज साहब। खुद ब खुद अपने सभी नामों निशां तक खा गई, एक नदी अपने किनारों को यहाँ तक खा गई। खूबसूरत कलाम से नवाज रहे जनाब दशमेश गिल कनाडा से।
हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सना खान मुस्तफ़ा शमोन आफ्ताब नकवी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये नजराना अकीदत आपने इब्तिदा में पेश करना था, लेकिन मेरी कोताही की वजह से इन तक लिंक ना पहुंच सका। जो दुआने प्रोग्राम जब इनका मैसेज आया तो मैंने इनको लिंक भेजा, तो आपकी मोहब्बत के आप तशरीफ लाए जी। कलाम अता फरमाइए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी। ज़ियारत करा दे मदीना मुझे तो, ज़ियारत करा दे मदीना मुझे तो, ज़ियारत करा दे मदीना मुझे तू, दरूदों का दे खजीना मुझे तू, दरूदों का दे खजीना मुझे तू, ज़ियारत करा दे मदीना मुझे तू, मेरे काम सारे संवर जाए जिससे, मेरे काम सारे जाए जिससे, कोई ऐसा दे करीना मुझे तू, कोई ऐसा दे करीना मुझे तू, ज़ियारत करा दे मदीना मुझे तू, सुभान अल्लाह, क्या कहना। जिंदगी के भंवर से निकाले, क्या कहना। वाह वाह वाह। मुझे जिंदगी के भंवर से निकाले, अता कर दे ऐसा सफीना मुझे, क्या कहना। दे ऐसा सफीना मुझे तू, ज़ियारत करा दे मदीना मुझे तू, जहाँ दिल का रोशन रहे जिससे हरदम, जहाँ दिल का रोशन रहे जिससे हरदम, वो दे मुनव्वर खजीना मुझे तू, वो दे मुनव्वर खजीना मुझे तू, ज़ियारत करा दे मदीना मुझे तू, मिले तेरे गुलशन से राना ये दिल, मिले तेरे गुलशन से राना ये दिल, कोई दान कर दे करीना मुझे तू, कोई दान कर दे
करीना मुझे तू ज़ियारत करा दे, मदीना मुझे तू सुभान अल्लाह देख पाए कमर तेरी जिससे वाह झलक देख पाए कंवल तेरी जिससे अता कर दे वो चश्म बीना मुझे तू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अता कर दे वो चश्म बीना मुझे तू क्या कहने ज़ियारत करा दे, मदीना मुझे तू दरूदों का दे दे, खजीना मुझे तू ज़ियारत करा दे, मदीना मुझे तू। माशाल्लाह क्या कहने खूबसूरत नात साइमा दे दे खजीना मुझे तू। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ी। बहुत शमून आफ्ताब नकी साहब से अक्सर चैनल्स पे मुलाकात होती है, तो ये वहाँ पे नातिया कलाम रिकॉर्ड करवाने के लिए तशरीफ ले जाते हैं और मैं वैसे ही झक मारने चला जाता हूँ, तो अक्सर इनसे मुलाकात हो जाती है मुख्तलिफ चैनल्स पे। तो मैंने दरख्वास्त की, परसों प्रोग्राम था मोहतरमा साइमा कौन साहिबा की किताब उसने खामोशी का लाहौर में तारीफी तकरीर, तो मैंने इनसे दरख्वास्त की कि आप तशरीफ लाइए और पढ़िए, उनकी मोहब्बत के तशरीफ लाए। जी राना असद खान साहब, राना असद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बहुत इंतजार किया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे लाहौरिया भाई हैं, इनको जितना भी इंतजार करवा लें ये महसूस नहीं करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपना कलाम अता फरमाइए। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा कलाम सुनने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी खुशनसीबी है कि इस महफिल का मैं हिस्सा हूँ और इतने अच्छे और नामवर शौरा कराम का मुझे कलाम सुनने का मौका मिला और आपकी खूबसूरत गुफ्तगू से मैं महसूस होता रहा हूँ। तो वनी साहब आपका बहुत शुक्रिया और साहिब महफिल की इजाजत से नात के 2 अशार और फिर गजल के चंद अशार पेश करूंगा। जी शुक्रिया। ख्वाब देखा है मदीने से बुलावा आया, ख्वाब देखा मदीने से बुलावा आया, है यकीन अब तो मुकद्दर संवरने वाला, है यकीन अब तो मुकद्दर है संवरने वाला, मेरी पलकें मेरे पैरों में लगा दे यारब, मेरी पलकें मेरे पैरों में लगा दे यारब, मैं मदीने की जमीन पर हूँ उतरने वाला। जी शुक्रिया। गजल से चंद अशार आपकी। गर इश्क नहीं करना दामन भी फटा क्यों हो, गर इश्क नहीं करना दामन भी फटा क्यों हो, मजनू है अगर मजनू मुंह भी धुला क्यों हो। गर इश्क नहीं करना दामन भी फटा क्यों हो, मजनू है अगर मजनू तो मुंह भी धुला क्यों हो, तुम दाग सजाते हो, तुम दाग सजाते हो जख्मों को हरा रखना, तुम दाग सजाते हो जख्मों को हरा रखना, और जख्म मोहब्बत का फिर दोस्त सिला क्यों हो। क्या माना तो नहीं हमने पर सुनते हैं लोगों से, माना तो नहीं हमने पर सुनते हैं लोगों से, अगर सच्ची मोहब्बत है महबूब खफा क्यों हो। जी शुक्रिया। और ये जिस्म तो फानी है
दो रूहों के तवस्सुत से ये जिस्म तो पानी है और रूहों के तवस्सुत से महबूब के सजदे से इनकार रवा क्यों हो। क्या कहना। और मजहब में गर मजाजी रखता है इश्क हमरा, मजहब में गर मजाजी रखता है इश्क हमरा, के हकीकी भी मजहब को जुदा क्यों हो। क्या कहना। उशाक का कहना है हक पर हो या मजाजी, उशाक का कहना है हक पर हो या मजाजी, जब इश्क खुदा है तो फिर और खुदा क्यों हो। क्या कहना। जी जी जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी खूबसूरत समाअतों का। अनीस साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया राना असद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत कलाम से नवाजा। बाबा जी वकार जो हमारे आज इस तकरीब में पहली बार मेहमान तशरीफ लाए हैं, ताहिर अब्दाल साहब भी उनमें मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी एक गजल अता फरमाएं। फिर हम साहिब सदारत की तरफ आते हैं। इन्हें आज हमने बहुत इंतजार करवाया, लेकिन कोई बात नहीं, ये पहले भी इंतजार करते रहते हैं, तो हमने तो आहिस्ता आहिस्ता इंतजार करा करा के इनकी घुट्टी में शामिल कर दिया है कि अब आपने इंतजार ही करना है। जी जी, ताहिर अब्दाल साहब गजल अता फरमाइए। कहाँ अफलाक पर उतरे हुए हैं, कहाँ अफलाक पर उतरे हुए हैं, सितारे खाक पर उतरे हुए हैं। क्या कहना। और गजब के बोल हैं जो जर्द रुत में, गजब के बोल हैं जो जर्द रुत में, लबे बेबाक पर उतरे हुए हैं। क्या कहना। क्या कहना। कहीं पत्थर गिरे हैं आईनों पर, कहीं खाशाब पर उतरे हुए हैं। क्या कहना। कहीं जिस्मों पे जख्मों के निशान हैं, कहीं पोशाक पर उतरे हुए हैं। और जमाने भर के दर्दो गम मेरी जान, दिले नमनाक पर उतरे हुए हैं। क्या कहना। और फिर जी, खुदा महफूज रखे उन दुखों से, खुदा महफूज रखे उन दुखों से जो अर्ज़े पाक पर उतरे हुए हैं। आमीन आमीन। क्या कहना। खुदा महफूज रखे उन दुखों से जो अर्ज़े पाक पर उतरे हुए हैं। दिखाने हैं वो नक्श ताहिर जो सतह चाक पर उतरे हुए। क्या कहना। क्या कहना। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं तो घबरा गया था, मैंने कहा ये शेर सुनाने लगे कि खुदा महफूज रखे दोस्तों से। तो दोस्तों में जो है असद अली राणा साहब भी यहाँ पर मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ और शमून साहब भी मौजूद हैं। मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब साहब। जी, तनवीर फूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज की तकरीब के साहिब सदारत। तनवीर फूल साहब दुनिया अदब में किसी तारफ के मुताज नहीं। जनाब तनवीर फूल साहब न्यूयॉर्क अमेरिका में कयाम पजीर हैं। आपका नाम तनवीर अहमद सिद्दीकी है, उर्फियत आपकी फूल है, और जो तखल्लुस में बदल गई और आपने तनवीर फूल नाम को मुकम्मल कर लिया। और कलमी नाम जो है वो 3 सितंबर 1948 को मुजफ्फरपुर बिहार इंडिया में पैदा हुए। 4 बरस की उम्र में पाकिस्तान हिजरत की, 16 बरस पहले अमेरिका की शहरियत इख्तियार की। 1973 में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एमए किया। 6 बरस की उम्र में रसाइल और किताबें पढ़कर अदब से लगाव हुआ। नसर निगार भी हैं मगर शायरी की तरफ तबीयत ज्यादा माइल है। पहली शेरी तकलीक 1957 में शाया हुई। मजमुआ हाय कलाम में गुलशन सुखन 1970, खुशबू भीनी भीनी 1973 और दूसरी बार दूसरा एडिशन छपा 2009 में। तनवीर हिरा ये तारफी जिल्द है। मंजूम कुरान तफहीम 1994 में छपी। अनवार हिरा इसमें हमदो नात व मनकबत है, ये 1997 में छपी। रश्के बागे इरम कौमी नगमे है 1997 में छपे। तनवीर हिरा जिल्द अव्वल
मजमून, तफहीम, सूरह बकरा 1999 में छपी। ये मैंने देखी, बाकी मैं उर्दू में बोले जा रहा हूँ, लेकिन ये 1999 में जो है ये मैंने इंग्लिश में बोल दिया, बोला है कि मुझे 99 को उर्दू में कहना नहीं आता कि कैसे कहते हैं। हालांकि तनवीर साहब ने मुझे कितनी बार बताया है। और धुआं धुआं चेहरे, गजलियात, मंजूमात, किताब 99 में छपी। ज़ुबूर सुखन, हमदिया मजमुआ 2002 में, किंदील हिरा मजमुआ ना 2003 में, चिड़िया तितली फूल, ये आपकी किताब अवार्ड याफ्ता है नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान, ये 2000 में छपी। नगमाते पाकिस्तान, इस पर आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको पेश किया गया, उर्दू में इसे सदाकती अवार्ड कहते हैं। आप सदाकती अवार्ड याफ्ता है नगमाते पाकिस्तान पर। अरहमुर राहिमीन सानेट का अवलिन मजमुआ 2005 में, नुमाया एजाजात में 2005 में, अदब अतफाल में हुकूमत सिंध की जानब से 1 लाख रुपए कैश अवार्ड। तो देखें, मैं हर बार 1 लाख रुपए का जिक्र जरूर करता हूँ। 2005 और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपकी खिदमत में पेश किया गया अदबी खिदमात के एतराफ में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज आपने बहुत इंतजार फरमाया, तो आप हमें 2 गजलें अता फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसील से तारुफ सबके सामने पेश किया। और जो लोग मौजूद हैं उन सबका बहुत शुक्रिया कि सुन रहे हैं सबसे। तो सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पहले मैं 2 अशार पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए। कुन तो कंजन है कौल खालिक का, कुन तो कंजन है कौल खालिक का, इसमें तख्लीक का सिरा महफूज। कुन तो कंजन है कौल खालिक का, इसमें तख्लीक सिरा महफूज। और अज़ल ता अबद जो होना है, अज़ल ता अबद जो होना है, लौह महफूज में हुआ महफूज, लौह महफूज में हुआ महफूज। और हरगिज़ बड़े गुनाह में होना न मुब्तला, हरगिज़ बड़े गुनाह में होना न मुब्तला, खाकी बशर को चाहिए 100 बार एहतियात। गुनाह कबीरा, हरगिज़ बड़े गुनाह में होना न मुब्तला, खाकी बशर को चाहिए 100 बार एहतियात। शैतान है दुश्मनी में हमा वक्त मुनहमिक, शैतान है दुश्मनी में हमा वक्त मुनहमिक, कर ले न दाम नफ्स गिरफ्तार एहतियात, कर ले न दाम नफ्स गिरफ्तार एहतियात। एक और पता सुन लें। सिर्फ कुरान है जो हर्फ बहर्फ क़ल्ब मोमिन में हो गया महफूज, गर्दे नारे नशा हिरा में मिले, आंखों में कर लूं खाके पा महफूज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गजल समाअत फरमाइए। मतलब है, जख्म होता हुआ ताज़ा नहीं देखा जाता, जख्म होता हुआ ताज़ा नहीं देखा जाता, और कल्ब बिस्मिल तुझे रुसवा नहीं देखा जाता, जख्म होता हुआ ताज़ा नहीं देखा जाता, कल्ब बिस्मिल तुझे रुसवा नहीं देखा जाता। और हमको मालूम है ये शाम को मुरझाएगा, हमको मालूम है ये शाम को मुरझाएगा, हमसे खिलता हुआ गुंचा नहीं देखा जाता। आज़ाब, हमको मालूम है ये शाम को मुरझाएगा, हमसे खिलता हुआ गुंचा नहीं देखा जाता। जो अलग हो गई बिल्कुल ही शजर से यारो, जो अलग हो गई बिल्कुल ही शजर से यारो, ऐसी टहनी को शगुफ्ता नहीं देखा जाता। जो अलग हो गई बिल्कुल ही शजर से यारो, ऐसी टहनी को शगुफ्ता नहीं देखा जाता। और ये तज़मीन है, तब आज़ाद नहीं होती क़फ़स की खूगर, तब आज़ाद नहीं होती क़फ़स की खूगर, पिंजरे में परिंदा नहीं देखा जाता, हमसे पिंजरे में परिंदा नहीं देखा जाता।
اور دل کی آنکھوں سے کرو دید کلیم داور، دل کی آنکھوں سے کرو دید کلیم داور، تم سے گر طور پہ جلوہ نہیں دیکھا جاتا، دل کی آنکھوں سے کرو دید کلیم داور، تم سے گر طور پہ جلوہ نہیں دیکھا جاتا۔ اور یہ اپنے وطن پاکستان کے حوالے سے، کشور پاک کی بنیاد میں ہے اپنا لہو، کشور پاک کی بنیاد میں ہے اپنا لہو، اس کا شیرازہ بکھرتا نہیں دیکھا جاتا، کیا کہنے کشور پاک کی بنیاد میں ہے اپنا لہو، اس کا شیرازہ بکھرتا نہیں دیکھا جاتا۔ اور کیا غضب ہے، کیا غضب ہے، کیا غضب ہے کہ چلے، کیا غضب ہے کہ ملے، کیا غضب ہے کہ چلے راہ دکھانے رہزن، کیا غضب ہے کہ چلے راہ دکھانے رہزن، رہبری کا یہ تماشا نہیں دیکھا جاتا، کیا غضب ہے کہ چلے راہ دکھانے رہزن، رہبری کا یہ تماشا نہیں دیکھا جاتا۔ اور چشم نظارہ کو ہے حسن مکمل کی طلب، چشم نظارہ کو ہے حسن مکمل کی طلب، ماہ کامل میں یہ دھبا نہیں دیکھا جاتا، ماہ کامل میں یہ دھبا نہیں دیکھا جاتا۔ اور دل میں جس کے ہو نہاں نور بلال حبشی، دل میں جس کے ہو نہاں نور بلال حبشی، ایسے انسان کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا، دل میں جس کے ہو نہاں نور بلال حبشی، ایسے انسان کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا۔ چاہتے ہم ہیں رہے لب پہ تبسم اس کے، چاہتے ہم رہے لب پہ تبسم اس کے، اس کی آنکھوں میں ستارہ نہیں دیکھا جاتا، اس کی آنکھوں میں ستارہ نہیں دیکھا جاتا۔ وہ مقطع ہے، گود میں گل کی ہے شبنم ہی کو دیکھا ہے پھول، گود میں گل کی ہے شبنم ہی کو دیکھا ہے پھول، صحن گلشن میں تو شعلہ نہیں دیکھا جاتا، صحن گلشن میں تو شعلہ نہیں دیکھا جاتا، زخم ہوتا ہوا تازہ نہیں دیکھا جاتا، ہم سے کھلتا ہوا غنچہ نہیں دیکھا جاتا۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اس پر بھی ہے وقت تو ایک غزل اور سن لیں۔ جی جی، اب اپنی باہوں میں گوری سمٹ جائے گی، اپنی باہوں میں گوری سمٹ جائے گی، وصل کی رات کیا یوں ہی کٹ جائے گی۔ سوال ہے، اپنی باہوں میں گوری سمٹ جائے گی، وصل کی رات کیا یوں ہی کٹ جائے گی۔ اور دل میں آدم نے سوچا نہ ہوگا کبھی، دل میں آدم نے سوچا نہ ہوگا کبھی، آدمیت بھی خانوں میں بڑھ جائے گی، دل میں آدم نے سوچا نہ ہوگا کبھی، آدمیت بھی خانوں میں بڑھ جائے گی۔ اس حقیقت کا ادراک ہے یا نہیں، اس حقیقت کا ادراک ہے یا نہیں، سال جب گزرے گا عمر گھٹ جائے گی، اس حقیقت کا ادراک ہے یا نہیں، سال جب گزرے گا عمر گھٹ جائے گی۔ ایک اندیکھی قوت کا ہے آسرا، ایک اندیکھی قوت کا ہے آسرا، جو رکاوٹ ہے رستے سے ہٹ جائے گی، جو رکاوٹ ہے رستے سے ہٹ جائے گی۔ اور وہ کشش عشق میں میرے، وہ کشش عشق میں میرے ہے ہمنشین، ایک اندیکھی قوت کا ہے آسرا، جو رکاوٹ ہے رستے سے ہٹ جائے گی۔ اور وہ کشش عشق میں میرے ہے ہم نشیں، اس کی تدبیر ساری الٹ جائے گی، اس کی تدبیر ساری الٹ جائے گی۔ اور مفلسی کا یہ صحرا بڑا ہے بہت، مفلسی کا یہ صحرا بڑا ہے بہت، گرد سے مانگ گوری کی اڑ جائے گی، مفلسی کا یہ صحرا بڑا ہے بہت، گرد سے مانگ گوری کی اڑ جائے گی۔ ظلم اور جور سے پر ہے دنیا مگر، ظلم اور جور سے پر ہے دنیا مگر، ایک دن اس کی کایا پلٹ جائے گی، ایک دن اس کی کایا پلٹ جائے گی۔ فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے اب، فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے اب،
ہر لڑائی یقیناً نمٹ جائے گی، ہر لڑائی یقیناً نمٹ جائے گی، یاد ماضی کا ہوگا دریچہ جوا، یاد ماضی کا ہوگا دریچہ جوا، نیند آنکھوں سے اس کی اچڑ جائے گی، نیند آنکھوں سے اس کی اچڑ جائے گی، اور حسن اس کا ہے بے حد غرور آفریں، حسن اس کا ہے بے حد غرور آفریں، وہاں خودی عشق کی آگے ڈٹ جائے گی، وہاں خودی عشق کی آگے ڈٹ جائے گی، وہ نہ ایسا کتاب نظارہ نہ ہو، وہ نہ ایسا کتاب نظارہ نہ ہو، اب گھٹا زلف کی رخ سے چھٹ جائے گی، اب گھٹا زلف کی رخ سے چھٹ جائے گی، اور رقص چنگیز ہوگا یہاں کب تلک، رقص چنگیز ہوگا یہاں کب تلک، کیا زمیں ساری لاشوں سے پٹ جائے گی، کیا زمیں ساری لاشوں سے پٹ جائے گی، اور شعلے نفرت کے گریوں بھڑکتے رہے، شعلے نفرت کے گریوں بھڑکتے رہے، آسمانوں تک ان کی لپٹ جائے گی، آسمانوں تک ان کی لپٹ جائے گی۔ مقطع ہے، ظلم ہوتا رہا اس کے سینے پہ گر، ظلم ہوتا رہا اس کے سینے پہ گر، چھاتی دھرتی کی اے پھول پھٹ جائے گی، ظلم ہوتا رہا اس کے سینے پہ گر، کیا کہنا چھاتی دھرتی کی اے پھول پھٹ جائے گی، اپنی باہوں میں گولی سمٹ جائے گی، وصل کی رات کیا یوں ہی کٹ جائے گی، دل میں آدم نے سوچا نہ ہوگا کبھی، آدمیت بھی خانوں میں بڑھ جائے گی، کیا کہنے پھول صاحب صدر اپنا کلام عطا فرما رہے تھے۔ دشمیش گیل صاحب، بھر گیا ایسے ہی عمر جاویدانی کا گلاس، بھر گیا ایسے ہی عمر جاویدانی کا گلاس، ایک کپ چائے ملی اور ایک پانی کا گلاس، یاروں کے سنگ جب بھی آئے ڈھابے پر، یاروں کے سنگ جب بھی آئے ڈھابے پر، بیٹھ کے پی لیتے ہیں چائے، کیا کہنا بحث کر دوں میں کام بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، ٹیرس میں پھر چائے کی پیالی سامنے رکھی ہے، ٹیرس میں پھر چائے کی پیالی سامنے رکھی ہے، تیری خاطر کرسی خالی سامنے رکھی، آپ کی چائے سے مجھے چائے کے اشعار یاد آ گئے، خدمت میں پیش کر دیے۔ گفتگو فورم پاکستان اور گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کے زیر اہتمام آن لائن عالمی مشاعرے میں آپ تمام احباب نے بہت وقت دیا، اور خاص طور پر ہمارے نئے دوستوں نے جو آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، انہوں نے جو ہے وہ پروگرام کو چار چاند لگا دیے۔ مجھے امید ہے کہ ان کو بھی پروگرام پسند آیا ہوگا، ہمیں تو آپ لوگ ویسے ہی پسند ہیں اور بہت ہی پسند آئے ہیں، پہلے بھی پسند ہے اور اب اور زیادہ پسند کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ آج ہمارے ایک نئے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑے، ہم آپ کے ساتھ جڑے، تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ، اپنا خیال، 2 گھنٹے میں ختم ہو گیا، ماشاءاللہ، اللہ حافظ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ انیس بھائی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔